Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Kanak, and today we are going to do yet another pick a card reading, uh, where we are going to talk about, or rather, the topic of our reading is what is it that you are not seeing in your situation? What is it that you're kind of missing on about maybe your life scenario or a particular situation or in general about yourself. So that is our topic for today. And yeah, also we will have three piles to choose from as usual. Um, and also there will be separate videos for each pile because I feel that it would be easier for people to understand which pile calls them rather than uh, picking in the same video. So that would be it. Now I shall see you at your reading. So hello pile 2, welcome to your reading, and we will get started with our topic, which is what is it that you are not able to see about your situation, your life, or just about yourself. So, we will dive deep into it. And also, before starting this reading, I would like to mention that I do take personal readings. So, if you would want, or if you want a personal reading from me, you can connect to me through my email ID given in the description box below. So I shall see you there, uh, in case if you want that. And now let's get started with your reading. And I will be using my this new deck, which is the Everyday Witch Tarot. Uh, it is a pretty cool deck because every card in this deck has a cat in it. And also, on this you can see this little cat. That too, a black cat with this broom and this hat. So I really love cats. So I'm pretty obsessed with it. So let's get started. What is it that file 2 isn't seeing about themselves or their situation or anything that comes up? Okay, thank you. We take only those cards which drop or which flip. Clear, concise, accurate messages, Spirit. Thank you. Clear, concise, accurate messages, Spirit. Thank you. Clear, concise, accurate messages. Pile 2. Okay, this came into my hand. Some cards are repeating from the previous pile. Okay, thank you. One more. Yeah, thank you. That is all I feel. Okay. So I'll show you your cards. So firstly we have the Three of Wands from the back of the deck. Then we have the Queen of Cups, the Eight of Wands, the Four of Cups reversed, the Moon reversed, or no, actually upright, yeah. Upright, the Moon upright, the Seven of Swords, okay, the Lovers,
and the Chariot, ending your reading. Like ending the spread, not the reading also. तो और भी कार्ड्स आएंगे. Okay. So, okay, I am also being drawn to my Lightseer's Tarot deck. उससे भी मुझे कार्ड निकालना है before starting. ये मुझे पसंद है. नहीं पसंद है तभी लिया है. I feel pile number 2 you have a pretty open energy. मतलब मेरा ऐसा मन कर रहा है मैं आपसे बात करूं जैसे कितनी गर्मी हो रही है, कैसा मौसम हो रहा है, यू नो. या मतलब यू हैव प्रिटी फ्रेंडली एनर्जी, लाइक या. एंड ऑल्सो यू नो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना आप में वो आप में वो हुनर है या आप में वो टैलेंट है कि आप लोगों से ना मतलब आप किसी भी सिचुएशन में कहीं पर भी हो आप किसी से भी ऑनेस्टली बात कर सकते हैं. यू एक्चुअली नो हाउ टू टॉक टू पीपल, यू एक्चुअली नो what to say to people, what not to say to people, and to which particular people you are meant to say certain things. ये मुझे ऐसा लग रहा है. एंड आप एक गिवर हो, पाइल नंबर 2. नाउ गिवर इन व्हाट सेंस? आई फील एनर्जेटिकली आप यू नो एक गिवर हो मतलब. एंड आई फील ये अनकॉन्शियसली आपके साथ होता है जहाँ पे आप ना ऐसा हो सकता है या हुआ होगा आपके साथ अगर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आप किसी के लिए कुछ विश कर रहे हैं. अपने लिए तो आपके काम लाइक बन ही जाते हैं या कभी कभी बनने में शायद उन्हें वक्त लग जाए कुछ, बट दूसरों के लिए अगर आपने कुछ विश किया है तो वो हो जाते हैं ऑनेस्टली. लाइक मतलब लाइक जैसे आप किसी के लिए कुछ दुआ कर रहे हैं, आपने किसी के लिए कुछ विश किया है कि यार इनका ही हो जाए, या आपको ऐसी गट फीलिंग है कि यार ये ना ऐसे हो जाएगा इनके लिए, ये हो तो जाएगा काम इनका शायद. तो वो वैसा ही होता है. तो आप एनर्जेटिकली काफ़ी लोगों को हेल्प करते हैं. अब ये अननोइंगली हो सकता है, नोइंगली हो सकता है, ये आप बेहतर जानते होंगे, बट मुझे ये ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे. सो नाउ कमिंग टू इस डेक से कार्ड निकालना. थैंक यू. ओके वाओ. ओके ये भी लेंगे. टू ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, द स्ट्रेंथ, लव इट ऑलरेडी. माय गॉड, अरे भाई साहब कितने कार्ड गिरे, मैं सारे नहीं लूँगी. स्पिरिट प्लीज़ थोड़े कम कार्ड दीजिए. मतलब ये सब नहीं करती हूँ. थैंक यू. ओके थैंक यू. थैंक यू. Okay, so we have the Page of Cups reversed, the Three of Wands upright, the Justice, the Eight of Cups, and thank you, the Death card also dropped. Okay, thank you. One more time shuffle. We'll take only those cards which either drop or flip. Okay. The Star, God, and the Knight of Wands. One more. Okay. Spirit says one more. Thank you. The King of Pentacles and the World. Okay. ऐसे तो मैंने बोल ही दिए कार्ड्स, so I don't really think I need to speak about them. So I'll just put these
Strength, the Two of Swords, the Page of Cups, the King of Pentacles, the Knight of Wands, Eight of Cups, the Death, the Star, the Justice, and the Three of Wands. Okay, so the one thing I think what you don't see about yourself इज़ फर्स्टली कि मतलब मुझे लग रहा है आप ऑलरेडी लोगों के लिए बहुत करते हो। पाइल नंबर 2, जैसे मैंने कहा कि आप एनर्जेटिकली लोगों की हेल्प करते हो, जो आई फील उन्हें भी नहीं पता चलता आप उनकी हेल्प कर देते हो। मतलब आई फील कुछ लोगों को फील होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं कि उनकी उनकी एनर्जी सॉरी आपकी एनर्जी का एक इन्फ्लुएंस है उनकी लाइफ पर, बट मेजॉरिटी लोगों को ये फील नहीं होता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो अपने बारे में कहीं ना कहीं देखने की ज़रूरत है वो ये है कि आप ऑलरेडी लोगों के लिए बहुत करते हो। एंड और फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको ऐसा फील कराते हैं कि मे बी यू हैव नॉट डन इनफ फॉर देम, और मे बी दैट यू आर नॉट गिविंग इनफ। लाइक कहीं ना कहीं यहाँ पे एक यू नो इन सम वे दे आर betraying you in some way. Now betraying in terms of कि वो realize नहीं कर पा रहे हैं वो अगर realize करती भी है तो कुछ लोग तो शायद intentionally ये आपको बोलते हैं just to get more from you in terms of your energy. And और आई थिंक ये जो लोग आपको बोलते हैं आप कहीं ना कहीं इसमें बिलीव भी कर लेते हो, और आप फिर खुद को ऐसे सोचते हो कि मे बी आई एम गुड फॉर नथिंग, मे बी कि मुझसे कुछ होता ही नहीं है, या मे बी आई एम नॉट गुड इनफ। या आई फील दैट, एंड what is important for you is to realize that you are good enough. You are good enough. Pile number 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 में भी किसी के लिए मैसेज हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि उसका थोड़ा बहुत सिमिलर मैसेज था। मैं नहीं कहूँगी एग्जैक्टली सिमिलर। आई थिंक पाइल नंबर 2 इज़ अ लिटिल मोर एडवांस्ड वर्जन ऑफ पाइल नंबर 1। एडवांस मेरा मतलब नहीं वो लोग बिल्कुल ही ऐसा नहीं है, बट आई फील कि एनर्जेटिकली पाइल नंबर 2 पीपल आर वे मोर इवॉल्व्ड। या सो ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर आ रही है। एंड आई फील लाइक यहाँ पे है जैसे एक पर्सन इतना कुछ करता है, इतना दे रहा है, इतना कुछ कर रहा है, एंड फिर भी वो पर्सन को लोग बोल रहे कि नहीं तुमने तो कुछ किया ही नहीं, यू गुड फॉर नथिंग। एंड देन वो पर्सन उस चीज़ में बिलीव भी कर रहा है। ये एक सिनेरियो मुझे बार बार ये चैनल हो रहा है। तो आई फील आपको ना ऐसे लोगों से थोड़ा सा वॉक अवे करना चाहिए मुझे लगता है। एट ऑफ कप्स, सेंटरिंग द स्प्रेड, वॉक अवे, ये जैसे जा रही है ये कप को छोड़ के, शी इज गोइंग ऑनेस्टली कप, या बट ऑब्वियसली इन अ डायरेक्शन जहाँ उसे लाइट दिखती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि find your light, pile number 2. Find those people who actually appreciate you, who actually value you, who actually understand your light. Because okay, that's a pretty good example. So it's like बहुत ऐसे animals होते हैं, insects ही हैं बेसिकली। तो बहुत ऐसे insects होते हैं जो इतने छोटे होते हैं कि उनके सामने अगर एक बहुत बड़ी सी लाइट आ जाएगी तो वो उसको संभाल ही नहीं पाएंगे। वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे, बट स्टिल दे वुडंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। और एक पॉइंट के बाद जब वो उस लाइट के पास ज़्यादा जाते जाएंगे ना, तो तब वो उनके लिए ही हार्मफुल हो जाएगा, बिकॉज दे वुडंट बी एबल टू हैंडल इट, एंड इट माइट in turn lead them in burning themselves because of the light. Not really because of the light, but because of the fact कि वो उस लाइट के पास जा रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक चीज़ है कि और वो लाइट पाइल नंबर 2 आप हैं। तो आपको मुझे लगता है
ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि पहले तो हर कोई आपको नहीं समझेगा, हर कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा, हर कोई आपको देख ही नहीं पाएगा उस नज़र से, जैसा शायद आप एक्चुअली में हैं, जैसे आप एक्चुअली में हैं। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट कि आपका एक अपना थ्रोन है और आप उस पर बैठे हुए हैं। मतलब वी हैव द क्वीन हेयर, द क्वीन ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर इसका एक थ्रोन है। शी इज़ नॉट सिटिंग ऑन इट बट शी नोज कि वो थ्रोन उसी का ही है। तो आई थिंक आपको भी ये जानने की ज़रूरत है कि आपका एक थ्रोन है, आपकी एक अपनी सेल्फ है, आपकी एक अपनी प्लेस है सोसाइटी में, दूसरों की लाइफ में भी, और इन जनरल इन दिस एंटायर लाइफ टाइम आपकी एक सर्टन एनर्जी है जिसमें आप हमेशा रहेंगे, एंड वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, उसको कोई और ख़राब भी नहीं कर सकता। और हाँ, एक सेकंड ये भी है कि अगर उसको कोई ख़राब कर भी सकता है तो वो आप ही होंगे, पॉइंट नंबर 2। और वो तब होगा जब आप अपने आप की वैल्यू नहीं करेंगे। तो ये भी एक चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, एंड ये भी है कि ये भी बोल रहे हैं यूनिवर्स कि ठीक है, ऐसे लोग हैं, हमें तो पता चल ही रहा है, और हम खुद भी ऐसे लोगों को तुम्हारी लाइफ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। भगाने की मतलब ऐसे नहीं कि एकदम ही ऐसे कुछ कर दिया, बट इट्स लाइक कि ऐसे सर्कमस्टांसेस या ऐसी चीज़ें क्रिएट की जाएंगी जहाँ पर आपको ये रियलाइज़ होगा, पॉइंट नंबर 2, कि देर आर सर्टन पीपल हु आई नीड टू एंड थिंग्स विथ। एंड फिर ऐसे लोगों का दे विल जस्ट गो, द वर्ल्ड कार्ड shows ending, so in that sense. And yeah, and also it would be very just to you, very fair to you, अगर आप ऐसे लोगों से सराउंडेड होंगे जो आपकी लाइट को अंडरस्टैंड करेंगे, बिकॉज यू नो it is not possible, it is not possible for people जो अलग हैं, जो इतने वैल्यूबल हैं, वो ज़्यादा टाइम तक इन सम वे अनसेफ प्लेसेस में, नहीं कह रही अनसेफ इन सम अदर वे या इन सम अदर कॉनोटेशन में, अनसेफ इन द सेंस कि मतलब जैसे एग्जाम्पल से समझाती हूँ, जैसे अगर एक डायमंड है, अब डायमंड ऐसे ही रोड पे कब तक पड़ा रहेगा, मतलब इट इज़ अनसेफ देयर, राइट। अगर अगर उसको एकदम एक अगर उसको शाइन करना है और अपनी जगह पर बने रहना है, लोगों से नोटिस होना है, बट स्टिल इट वांट्स टू बी इन इट्स प्लेस, देन इट हैज़ टू बी इन अ प्लेस दैट इज़ सेफ। सो मुझे वही लगता है कि अगर आपको अपनी एनर्जी में बने रहना है तो आपको एक सेफ़ प्लेस की रिक्वायरमेंट है, एंड वो सेफ़ प्लेस आपके लिए क्रिएट हो रही है, यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए, और वो सेफ़ प्लेस उन लोगों से बनेगी जो आपकी लाइट को समझेंगे, ये मुझे लगता है। एंड ये भी एक है दैट यहाँ पे एक जर्नी की बात हो रही है ज़्यादा। लाइक वी हैव 3 of Wands फ्रॉम 2 different टैरो डेक्स। इससे भी 3 of Wands आया, इससे भी 3 of Wands आया, ये बैक ऑफ द डेक में था, एंड ये द लास्ट कार्ड था इस वाले टैरो डेक से। तो 3 of Wands टॉक्स अबाउट अ जर्नी। ये जो एक चीज़ रहेगी ना जहाँ पे आप ऐसे लोगों से मिलेंगे, ऐसे लोगों को इन सम वे ऐसे लोगों तक पहुँचेंगे जो आपको वैल्यू करते हैं, इट वुड बी अ जर्नी, इट वुडंट जस्ट कम लाइक कि हो गया और बस फिर ख़त्म, नहीं। एक पर्टिकुलर जर्नी से आप गुजरेंगे, ऑफ ऑफ ट्रस्टिंग योर सेल्फ, ऑफ बीइंग डेयरिंग इन टर्म्स ऑफ कि आप कैसे खुद को आगे रख सकते हो, एक रिस्क लेना कि हाँ यार, खुद पर ट्रस्ट करके, और आप लोगों के सामने ऐसे ही जा रहे हैं जैसे आप हैं, लाइक देयर इज़ नो लाइक ऑब्वियसली देयर इज़ एन आर्मर, एक बाउंड्री एक है, बट वो वॉल्स नहीं है, वो ये नहीं है कि आप दूसरे पर्सन को अलाउ नहीं कर रहे अपनी लाइफ में आने के, या वो कोई एक लाइक वो एक ट्रांसपेरेंट बाउंड्री है। लाइक
एक बाउंड्री है जो लोगों को समझ आएगी, बट स्टिल वो बाउंड्री से आप वो बाउंड्री में भी वो बाउंड्री से भी लोग आपको जैसे आप हैं वैसे ही देख पा रहे हैं. सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग. एक गाइडेंस का कार्ड लेंगे आपके लिए, पाइल नंबर 2. लेट्स सी व्हाट गाइडेंस डज स्पिरिट want to give pile number 2. Will only take those cards which flip or drop. Spirit. Let's see. Thank you. That was wild. Know your worth. Take inspired action. Nice. One more. Okay. Be proud of yourself. Yeah, I told this earlier. We have Taurus cards. Luxury. Okay. So, firstly, we have know your worth. Then we have be proud of yourself. And we have take inspired action. Full moon in Virgo. Okay. So I think ये pretty much sum up करता है जो हमने अभी तक बात करी. Yeah, this will pretty much sum up all of what we had like talked about. Be proud of yourself. जैसे मैंने कहा कि आप already बहुत करते लोगों के लिए, तो I think you should be proud and of that and knowing your words. Yes, because जैसे मैंने कहा कि एक जर्नी पर आप हैं, आपके लिए बहुत जल्दी शुरू होने वाली मुझे लगता है पॉइंट नंबर 2, जहाँ पर आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपकी वैल्यू करे. बट सामने वाला वैल्यू आपकी तभी करेगा जब आप अपनी वैल्यू करेंगे, जब आप अपनी वैल्यू जानते होंगे. सो दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो योर वर्थ. एंड ऑल्सो टेकिंग इंस्पायर्ड एक्शन. टेकिंग इंस्पायर्ड एक्शन से मुझे लगता है कि जो हमने बोला कि आपको ओपन रहना है, आपको एक ऐसी बाउंड्री रखनी है अपने आसपास जो आपको दूसरे लोगों के सामने वैसा ही रखे जैसे आप हैं. आई मीन लाइक मे बी एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह. अब एक ट्रांसपेरेंट ग्लास अगर आपके सामने है तो उसको कोई क्रॉस करके तब तक नहीं आ सकता जब तक आप ना चाहें. एंड सिंस वो ट्रांसपेरेंट है तो लोग आपको वैसा ही देख रहे हैं जैसे आप हैं. देयर इज़ नो illusion or misunderstanding. It's just clear. So उसके रिगार्डिंग मुझे लगता है कि आपको बाउंड्री सेट करने का सबसे मेन मैसेज है with this card. So yeah, any other messages, spirit? So that is all I have for you, pile number 2. I hope you liked this reading or you enjoyed watching this reading, hearing this reading. Again, it is a general reading, so take what resonates, leave the rest. And if you like how I read cards or my style of reading cards, please like, share, and subscribe to my channel, to this video. I think it really does not take anything from you to subscribe to my channel or to like this video, and also it would mean a lot to me if you do that. So that is all for today. I shall see you in my next reading. Until then, take care. Lots of love. Bye.